All right, so hello everyone. So today we have Prashant with us. Prashant is our YouTube subscriber of Career Kun channel, and he is somebody who has cleared his TCS MBA hiring of 25, and he has got his joining as well. Though it was quite late, but yeah, finally he has got his joining, and he's joining on 16th of March, right, Prashant? Yes, sir. Okay. So, friends, Prashant, I have asked him to come to share his experience around how he prepared for TCS MBA hiring, both for the written round and interview. उसने कैसे तैयारी की, so that the people who are appearing for MBA 26 hiring can learn from it. Also, will understand from him that how was his experience of entire waiting for joining and how he's feeling now. So, with this. Welcome, Prashant. Welcome once again. ठीक है? And Thank you, thank you sir. for agreeing to come on this call. है ना? So, Prashant, to Always, start sir. with, how you are feeling? Finally, आपका joining जो है, आ गया है. It is on 16th March. So, आपको, how are you feeling? It's a great feeling for me, sir. It's a great opportunity for me to start a career with TCS as a fresher, sir. And actually, your session was very helpful for me personally. And I always follow your roadmaps that you provide throughout the examination part, interview part, and all those patience parties also, sir. बिकॉज पेशेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा ही जरूरी थी सर आफ्टर 9 months आई गॉट माई ज्वाइनिंग एज अ टीसीएस एमबीए हायरिंग 2025 बैच सर सो नाउ इट्स अ वेरी जॉयफुल मोमेंट फॉर मी सर थैंक यू सो मच प्रशांत एंड आई थिंक आई एम वेरी श्योर कि मतलब जितना भी आपने जो ज्वाइनिंग के लिए वेट किया है और जितना भी आपका 9 मंथ्स का पेशेंस रहा है आई एम श्योर जिस मोमेंट आपका ज्वाइनिंग आया होगा वो उस वक्त इट वुड हैव गॉन अवे इट वुड हैव जस्ट वैनिशेस राइट उस एक मोमेंट यस में सर जब आपका ज्वाइनिंग आता है तो जितना भी हम मतलब स्ट्रगल कर रहे होते हैं आई एम श्योर कि वो सब चला जाता है नाउ वी फोकस ओनली ऑन ज्वाइनिंग राइट yes sir exactly the same I got my joining on 11th of Feb and at 8:51 p.m. ओके This session was recorded 8:34 p.m. हाँ हाँ and on this time actually I got my joining letter राइट and राइट the survey mail I got on 11th of Feb sir. ओके तो बेसिकली प्रशांत ने ही मुझे बताया कि ज्वाइनिंग आ गया है ही इज कनेक्टेड विथ मी ऑन लिंक्डइन सो ही मैसेज एंड दैट इज हाउ आई आल्सो कम टू नो आई वाज आल्सो थिंकिंग कि ज्वाइनिंग कब आ रहा है बच्चों का बिकॉज आपको ऑलरेडी एक सर्वे मेल आया था उसके बाद से ज्वाइनिंग अवेटेड था एंड प्रशांत एज व्हाट प्रशांत मेंशन इज कि ज्वाइनिंग हैज कम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एमबीए हायरिंग एनक्यूटी स्मार्ट and Ignite as well. So, that is Yes sir. how the joining, and it has come for different dates in March 5th, 12th, 16, and 26th, right? Like that, है ना, Right Prashant? sir. Right Okay, perfect. And thank you so much, Prashant, for your kind words. And I'm so happy, मतलब, for the first time, I'm hosting a YouTube subscriber. And it's an honor कि आपने आपके बैकग्राउंड में करियर कुंज का लोगो लगा रखा है मैंने इसको नहीं बोला था लोगो लगाने को लेट मी टेल एवरीबॉडी हु इज वाचिंग दिस एंड ट्रस्ट मी इट मोटिवेट्स मी समटाइम्स आई थिंक कि आई मेक वीडियोस कौन देखता होगा हु वॉचेस दैट एंड इज इट एक्चुअली हेल्पिंग पीपल because I took a break from my corporate career to do something which I am doing now and then it's always a question am I actually giving value and is it helping somebody and when people like you come up and say that it is helping you it actually motivates me it's an honor thank you so much Prashant okay it motivates me to continue doing that एंड जितने भी लोगों का ज्वाइनिंग नहीं आया है आई एम श्योर लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स जिनका भी ज्वाइनिंग आ जाता है दे गेट इनएक्टिव ओके ऑन यूट्यूब और एवरीवेयर वो कम्युनिटी से भी बाहर हो जाते हैं बिकॉज उनका जॉइनिंग आ गया है तो देर इज अ द मैक्सिमम नंबर पीपल हु आर कमेंटिंग आर द वंस हु हैव नॉट गॉट देयर जॉइनिंग सो वी फील लाइक कि जॉइनिंग क्या बोलते हैं किसी का नहीं आया है राइट बट दैट इज नॉट ट्रू yes sir. ओके ज्वाइनिंग आता जाता है और बच्चे जिनका ज्वाइनिंग आता है वो इनएक्टिव होते जाते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रशांत का जो ज्वाइनिंग है उसका एक ज्वाइनिंग कॉल भी हुआ टीसीएस टीम के साथ and more than 1500 people were there on the call so that means that 1500 people का joining आया है in March right
सो जिनका भी Yes, sir. ज्वाइनिंग अभी नहीं आया है, प्लीज बी पेशेंट, आपका ज्वाइनिंग विल कम डेफिनेटली फॉर श्योर. द वे टीसीएस इज हायरिंग फ्रेशर्स, इट क्लियरली सेज कि बहुत सारा, मतलब टीसीएस को फ्रेशर्स का रिक्वायरमेंट है. बिकॉज रिसेंटली उन्होंने उनका एनक्यूटी हायरिंग ऑफ कैंपस लॉन्च किया, उसमें भी बहुत नंबर्स हैं. एमबीए हायरिंग ऑल्सो ऑलरेडी ऑन, सो दैट मीन उनको बच्चे चाहिए, तभी तो उनके पास हायरिंग कर रहे हैं वो. एंड डेफिनेटली जिनको ऑलरेडी उन्होंने ऑफर किया है, सर्टेनली मतलब उनको वो ऑनबोर्ड करेंगे, तभी तो उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होगी. सो बी पेशेंट, आई नो इट्स टफ, but yeah, Prashant is a classic example for you of patience, I must say, and positivity also. Thank you, Prashant, for that. So, Prashant, anything you want to say to the people who are waiting for joining before we move on to the preparation of MBA uh, hiring? आपको कुछ कहना है, जो भी लोग वेट कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग का? हाउ यू हैव यूज्ड योर टाइम ऑफ 9 months, मतलब एनीथिंग ओपन हार्टेडली जो आपको बोलना है, और समथिंग फॉर देम. बिकॉज मैं तो बोलता ही रहता हूँ, अगर वो किसी, मतलब आपके जैसे पर्सन से सुनेंगे, उनके जैसे पर्सन से, मे बी इट कैन गिव देम सम कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन. Yeah, yes, sir. Actually, I would like to share one thing. In this gap period, you just already told in some videos ki just learn new things, just start some soft skills and also knowledgeable things that can help. प्रशांत, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आई कैन नॉट हियर यू. मतलब, Hello, sir. हाँ, Hi. अभी आ रही है, Hello. अभी. यस यस, Ah, कंटिन्यू फ्रॉम नॉलेजेबल थिंग्स या yeah. लर्निंग So, न्यू. so हाँ. Yes, sir. So actually, I just joined some choti moti companies. Like actually, I joined ZLearn part-time job. Like there is a role of a relationship manager for a school. Okay. So there is some concept about to meet with the parents and got some feedback ki how their child is performing in school and also prepare a one Excel sheet and mention the records, all those things. So Excel जैसे चीजें जो आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है सर. तो इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो मैंने मतलब एमबीए के दौरान तो एक्सेल्स वगैरह पे मैंने काम किया था बट वो फ्रीक्वेंट नहीं था. तो राइट. इन दिस जर्नी मुझे यहाँ से थोड़ा सा लर्न करने का मौका मिला. मैंने 3 मंथ्स ही किया एज अ इंटर्नशिप टाइप जो आपने बोला था जैसा सर कि अगर कोई इंटर्नशिप टाइप मिल रहा हो तो वो आप लर्न कर सकते हो सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो. लाइकवाइज तो मैंने वो अभी करा है सर और अभी वो मेरा कंप्लीट हो चुका है. तो इन दिस गैप पीरियड मैंने ये लर्न किया है और अभी मुझे ये है कि यस आई एम रेडी फॉर टीसीएस. और जब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नया नहीं लगेगा एकदम से. तो ये चीजें मुझे सर बीच में सीखने को बहुत ज्यादा मिली है इन दिस गैप पीरियड. गुड गुड प्रशांत, आई एम श्योर कि अगर आप कहीं भी ज्वाइन करते हैं एज एन इंटर्न, एज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉयर, सो द बेस्ट पार्ट इज कि यू गेट बिजी. ओके. यू ओनली फील इम्पेशेंट व्हेन यू आर फ्री. ठीक है. सो इफ यू हैव यस सर. सच अपॉर्चुनिटी, डजेंट मैटर कितना पे है, यू जस्ट ज्वाइन इट. एंड आई एम श्योर, आई कैन टेल यू कि हर जॉब, चाहे वो कितना छोटा भी क्यों ना हो, बी इट सेल्स, बी इट कोल्ड कॉलिंग, ऑल्सो टीचेस यू समथिंग. ठीक है. जितना आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जितना आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव एक्चुअल वर्क में होता है ना, उतना, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग क्लासेस में, सर्टिफिकेशन क्लासेस में नहीं होता है. राइट. तो लाइक प्रशांत सेड कि एग्जैक्टली. एक्सेल इसने पहले भी किया है, ऑल ऑफ अस आर यूजिंग एक्सेल फ्रॉम स्कूल डेज. ठीक ठीक है. बट सिंस वी आर नॉट कंसिस्टेंट अबाउट इट, सिंस वी आर नॉट डूइंग प्रैक्टिकल वर्क अबाउट इट, उस पर हमारा कमांड नहीं आता. And he said that he tried it during his work, and now he is proficient, and he is something, he is quite fast at it, right? So आप लोग भी किसी भी चीज को यूज करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है. लर्निंग अ सॉफ्टवेयर इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग इट, राइट? और किसी भी जॉब में आप कोई ना कोई टूल पे तो काम करते हैं, और वहां से आपका उस पर प्रैक्टिस बिल्ड होता है. सो गुड प्रशांत, आई थिंक अ वेरी गुड advice, and I'm happy that you followed about learning new skills and actually doing something. So good, Prashant. Now coming on to the 26 MBA 26 hiring. So all those students who are preparing for 26 hiring, उन सबका registration हो चुका है, and now the written test is scheduled on 12th of March, right? सो 12th of March को नेक्स्ट मंथ उनका रिटर्न टेस्ट है. एंड द रिटर्न टेस्ट आपने भी दिया था प्रशांत, यू हैव आल्सो गिवन. इट हैज 3 पार्ट्स. इट हैज वर्बल एबिलिटी,
one part business aptitude, and normal aptitude in reasoning as a third part. Total 47 questions, 20 questions for aptitude reasoning, 20 questions for business aptitude, and 7 questions for verbal ability. ठीक है? So ओवरलेबिलिटी, ठीक हाँ, है। और MBA इज अ niche hiring, so बहुत ज़्यादा TCS MBA हायरिंग का कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है यूट्यूब पे कंपेयर टू अदर हायरिंग, बिकॉज NQT हायरिंग को तो बहुत यूट्यूब चैनल कवर करते हैं, बट MBA हायरिंग इज वेरी निश, बहुत कम मतलब लोग कवर करते हैं. आई जस्ट रियलाइज कि जब मैंने MBA हायरिंग पे कंटेंट बनाया, देन आई गॉट सो मेनी सब्सक्राइबर्स बिकॉज देयर वाज nobody who was covering MBA hiring. ठीक है, so एग्जैक्टली how did you prepare for it, मतलब honestly, and what advice and tips you want to give for the people who are aspiring to सर। be in this? Yeah. Yeah, sir, I would like to share a one presentation over my screen, sir. Oh, Can I? wonderful. Yeah, yeah, please go ahead, प्रशांत. आपने presentation बना के लाए हैं. Oh, wow. मतलब you came with all preparedness to help people. I really appreciate. Yeah. Yes. So basically, Hold on. Yeah, yeah. Okay, go ahead. Yeah, it's visible now. Hmm. basically the test pattern that is you shared with स्टूडेंट्स प्रीवियसली। Hmm. सर जो हमारा टेस्ट होगा वो हमारा टीसीएस आईएनओ सेंटर पे ही होगा। ड्यूरेशन सर 90 मिनट्स की होगी। Right, right. एंड सर इसमें आपने जैसा अभी बताया वर्बल एबिलिटी पार्ट है 7 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी पास है 20 क्वेश्चंस एंड बिजनेस एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन। ओके। Hmm. सो बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट द सिलेबस, वर्बल एप्टीट्यूड के हमारे पास जो सिलेबस है वो हमारे स्क्रीन के सामने है। लाइक Hmm. Hmm. मिरर इमेजेस है, नॉन वर्बल सीरीज है, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस है, नंबर सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है सर। तो दीज ऑल टाइप्स ऑफ सिलेबस दैट इज कवर्ड इन द टीसीएस टेस्ट। Hmm. सो Hmm. जो भी स्टूडेंट 2026 बैच के लिए जा रहे हैं टीसीएस एमबीए हायरिंग के लिए, तो उनको ये पार्ट तो वर्बल एप्टीट्यूड का जो है कवर करना चाहिए जो उनकी स्क्रीन पे है। एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि आप जो भी चीजें हैं उसका आप स्क्रीनशॉट अभी रख लो और इसकी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दो सर। क्योंकि मैं लास्ट ईयर जैसा आपने गाइड किया था अपने वीडियोस के थ्रू कि आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए जिससे कि आपके जितने भी पार्ट्स है वो क्लियर होते चले। और जैसा सर मेरे कॉलेज में ये एप्टीट्यूड पार्ट एक दो बार हुआ भी था। कुछ ऐसी कंपनीज आई थी जो कि एप्टीट्यूड के बाद ही हमारी हायरिंग कर रही थी। Right. तो उससे उससे मुझे बहुत ज्यादा सर हेल्प मिला था। और उसके बाद एकदम एंड ऑफ द टाइम पे लाइक माय टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन 5th ऑफ अप्रैल 2025। Right. It was delay, quite delay by the Correct. TCS, some Right. technical issues due to. हाँ. So मुझे टाइम मिल गया था सर प्रिपरेशन करने का। आफ्टरवर्ड ये सारे पार्ट्स मैंने कवर किए within 1 month सर। Hmm. So Hmm. afterward, if we talk about quantitative aptitude part, so there is a time and work partnership। और सर मैं बता दूं ये जो सिलेबस मैं दिखा रहा हूँ इसके अपार्ट आपको कहीं से कुछ और नहीं आ रहा है। अगर ये हम प्रिपरेशन कर लेते हैं तो Hmm. इट वुड हेल्प स्टूडेंट्स हु आर Hmm. giving TCS MBA hiring test. Right. Right. So these all are the part quantitative aptitude test. हाँ. So तो यहाँ पे हमें प्रशांत, सर जो भी ये सिलेबस। ये नॉर्मल एप्टीट्यूड के ही टॉपिक्स हैं, एंड देन किसी भी एग्जैक्टली सर। मतलब MBA एंट्रेंस के लिए भी आपने प्रिपेयर किया होगा, कैट के लिए तो सेम टॉपिक्स रहते हैं. ठीक है. एग्जैक्टली सर। द ओनली थिंग इज कि 20 क्वेश्चंस हैं, दे आर 20 क्वेश्चंस, और 20 से ज्यादा टॉपिक्स हैं. राइट. तो टिपिकली राइट एक सर। क्वेश्चन भी एक टॉपिक से पूछा तो भी क्या बोलते हैं 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे. करेक्ट. सो करेक्ट सर। राइट. सो बेसिकली मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब जो भी आपकी कैट की प्रिपरेशन है या जो भी आपकी पहले की प्रिपरेशन जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, जस्ट रिवाइज देम. राइट. एंड डू सम राइट प्रैक्टिस, सर। बिकॉज थिंग्स लाइक एप्टीट्यूड रीजनिंग आर फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि हमको विद इन द टाइम फ्रेम सॉल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल, टाइम एंड वर्क का मैं क्वेश्चन बहुत इजीली मतलब सॉल्व कर सकता हूँ, बट आई हैव टू सॉल्व विद इन 30 सेकेंड्स और 1 मिनट. तो वहां उसके लिए मुझे प्रैक्टिस लगेगा. राइट. अदरवाइज यस सर। ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एवरेजेस, ये सब मतलब आई एम श्योर बाय नाउ, बीट प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, बीट प्रिपरेशन फॉर कैट और एनी अदर एग्जाम, सी मैट, आपने ऑलरेडी बहुत बार प्रैक्टिस किया है. सो जस्ट रिवाइज दिस वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड इन द पास्ट, और जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उस पर फोकस करिए, बिकॉज टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन से ज्यादा टॉपिक्स हैं. तो डजेंट मैटर कि एग्जैक्टली। आप ऐसे टफ टॉपिक में जाएं जिसमें कि
आपको मतलब बहुत नया पढ़ना पड़े। ओनली फोकस ऑन द आइडियाज जिसमें आप ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, एंड देन उस पे ही आप अपनी स्पीड बनाइए। आई एम श्योर कि, और इट्स अ नो नेगेटिव मार्क टेस्ट प्रशांत, राइट? इसमें यस आपकी सर, नो नेगेटिव नेगेटिव मार्क। मार्किंग, हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप एलिमिनेशन के थ्रू भी एक मतलब क्लोज गैस लगा सकते हैं, लाइक चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन आपको पता है कि नहीं है, तो फिर बचे हुए दो ऑप्शंस पे आप 50-50 चांस लेके यू कैन मेक अ गेस। सो वो भी हेल्प करता है। सो ये आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली माय सर। एडवाइस। व्हाट डू यू से प्रशांत? Yes, sir. Your advice is actually working for me, work for me. Sorry, sir. इसके अलावा तो सर कुछ भी नहीं है। और ऑड एंड आउट करके भी अगर आप करते हो तो आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। उनमें से हाँ आपको फिर बहुत ज्यादा ही ये आंसर निकल के आ जाएगी कौन सा आंसर सही हो सकता है। लेकिन सर प्रैक्टिस पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिसिंग यू कैन हाँ नॉट क्रैक। क्योंकि सर्टेनली। सर हाँ यस सर। राइट राइट, बिकॉज इफ मेरे यू सी, बैच हाँ राइट, यस प्रशांत, आपके मेरे बैच मेरे से। बैच के कुछ, हाँ मेरे बैच के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका ये कहना था आफ्टर एग्जामिनेशन कि ये बैंकिंग के एग्जामिनेशन से भी टफ क्वेश्चंस इन्होंने पूछे। बट मुझे सर सम पॉइंट ऑफ टाइम लगा था, बट जब सॉल्व करने हम गए तो सर वो क्लियर हो गया। करेक्ट। एब्सोल्युटली प्रशांत, प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज लेट मी टेल यू 47 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स है। सो लेस देन 2 मिनट्स फॉर क्या बोलते हैं वन क्वेश्चन, ठीक है? तो यस जहाँ सर। पे भी क्या बोलते हैं टाइम, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, आई हैव ऑलवेज टेकन इट लाइक कि इट इज अ टेस्ट ऑफ योर टाइम एंड यू नो सॉल्व इट अंडर प्रेशर, ठीक है? तो यस सर। फोकस ऑन द आइडियाज जहाँ पे आप अच्छे हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस को आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। जो टॉपिक्स टफ हैं, आपसे पहले नहीं बने हैं, उनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एंड दे विल ईट आउट योर टाइम, राइट? ठीक है। सो राइट सर। एंड एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी आपका स्ट्रॉन्ग मतलब स्कोरिंग सेक्शन होगा। बिजनेस एप्टीट्यूड इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक, क्योंकि ये एमबीए हायरिंग पर्टिकुलर ब्रांच के लिए नहीं है, राइट? राइट सर। it is not for marketing, just it is not just for finance or operations, it is for all the MBA streams except HR। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चंस फाइनेंस से होंगे, मार्केटिंग से होंगे, सप्लाई चेन से होंगे, ऑपरेशन से होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप से होंगे। तो मैं समझता हूँ 8-10 एमबीए की ब्रांचेस तो मतलब आराम से है, राइट, जिससे क्वेश्चंस यस सर। होंगे। तो 20 क्वेश्चंस इतनी सारी ब्रांचेस में से बनना, अगेन समथिंग वेरी मतलब डिफिकल्ट टू स्टडी, मतलब इट्स लाइक अ यूजीसी नेट सिलेबस, ठीक है, जिसमें सारे राइट सर। मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं। तो द बेस्ट एडवाइस विल बी कि अगेन इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगाएं, और जो भी फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सब्जेक्ट्स में जो आपने पढ़े हैं, जस्ट रिवाइज देम, राइट? प्रशांत, आपने राइट सर। स्क्रीन पे कुछ दिखा रहे हैं आप, सो लेट्स सी दैट। यस सर। हाँ सर इट्स अ बिजनेस एप्टीट्यूड पार्ट, जहाँ पे हाँ सर हमारे जो सिलेबस बिजनेस एप्टीट्यूड पार्ट के है। हाँ। तो यहाँ पे टोटल हमने जो है 5 यहाँ पे जो आपको टॉपिक गिवन है बेसिकली सिलेबस के। हम्म। इसमें से जो सर क्वेश्चन पूछे गए, मुझे जो सर क्वेश्चन पूछे गए थे बेसिकली द बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट लॉस, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, हाँ। आरओआई। ओके। एंड द सेकंड पार्ट इज मार्केट ट्रेंड्स एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पे सर जीडीपी के क्वेश्चन हमें मिले थे, सप्लाई एंड डिमांड के क्वेश्चन सर मिले थे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्वेश्चन सर पूछे गए थे उसमें। और सर राइट। वन थिंग आई हैव टू शेयर सर कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसके कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। वी हैव टू राइट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन सर। अच्छा, टाइप करना था आंसर आपको? टाइप करना था एग्जैक्टली। इन अच्छा तो, मैथ्स, बिजनेस एप्टीट्यूड ऑल्सो एंड इंग्लिश ऑल्सो सर। अच्छा तो मतलब उसमें आपके पास एमसीक्यूज नहीं थे, वो आपको आंसर्स टाइप करने नहीं। थे। तभी तभी एग्जैक्टली। ये टेस्ट को लोग डिफिकल्ट बोलते हैं। मतलब द मतलब लेवल इज एवरेज एंड अबोव, राइट प्रशांत? यस सर, है ना? राइट सर, राइट बिकॉज सर। ऐसा वो कर देते हैं, बट नॉट ए प्रॉब्लम, लाइक प्रशांत सेड ऑलरेडी कि उसको बहुत टफ नहीं लगा। एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी मतलब जो अप्रोच प्रशांत बता रहे हैं, जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से जाएंगे तो इट विल हेल्प यू। टेक द एग्जैक्टली। स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना? और इसके अराउंड आप चैट जीपीटी पे भी ये टॉपिक डाल सकते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड यू हैव ऑलवेज स्टडीड दिस इन एमबीए, जो आपने एमबीए में पढ़ा है, बट या एनीथिंग एल्स प्रशांत, यस जो सर। इसमें और भी है कुछ? Sir, nothing more. This is हाँ all about the test part that I had shared. और सर इसके अलावा तो कुछ नहीं है टेस्ट के लिए। बस वही है सर, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट वही है जब हमें आंसर लिख के देना होता है। उसमें भी सर 1 और 2 क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जिसका आंसर हमें लिख के देना है। ठीक है। नथिंग मोर।
और जो वर्बल एबिलिटी है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, राइट? या यस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सर। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन होता होगा नहीं? इट्स ओनली रीडिंग Yeah. कॉम्प्रिहेंशन। Reading comprehension, sir. Only reading comprehension. हाँ There is a four question asked from the reading comprehension. हाँ, You have to read the रीड अ all पैराग्राफ paras. एंड Yeah, आंसर द paras. एमसीक्यूज। After answer the questions answer. सो माय फ्रेंड्स, So ऑल ऑफ यू। basically, हाँ, जो भी आप ये सुन रहे basically हैं, that part is very easy, sir. right, that part is very easy. I was also telling the same. So in the test, please attend the reading verbal ability part first, क्योंकि reading comprehensions में you have to read long paragraphs, so don't leave them for the last. सबसे पहले उसको attempt करें, उसको ensure करें, then you go to the aptitude, then you go to business aptitude, because business aptitude में आपको सबसे ज़्यादा guess लगाने होंगे. So you know, उसके लिए आप 30 minutes 35 minutes रिजर्व रखें, ठीक है? 40 minutes अराउंड, एंड 30 minutes इज इनफ, बिकॉज वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, यू हैव टू मेक अ गेस. सबसे ज्यादा टाइम विल बी कंज्यूम्ड इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड योर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, राइट प्रशांत? Right, sir. परफेक्ट. प्रशांत, इसमें और भी स्लाइड्स हैं आपके पास, और भी कुछ है नो लाइक? सर, दिस इज द लास्ट टेस्ट पार्ट। इसके बाद सर मैं बीजीसी का सर एक केस है जिसमें मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जिनकी भी ज्वाइनिंग्स आती है उनका मन में ये है सर, बहुत लोगों का, कि मेरे से कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो या क्या होता है इशू। करेक्ट करेक्ट. सो आपका एक कॉल तो भी हो चुका है टीसीएस टीम के साथ, या सो लेट्स डिस्कस दैट प्रशांत. So friends, this सर is all about the written round. So आप written round निकाल लीजिए. For the interview preparation, I will make a separate video. And interviews, I have taken so many interviews for MBA hiring when I was in TCS. So interviews पे मैं काफी detailed videos I will make it. I'm sure प्रशांत, आपको जो last time videos हमने बनाए थे interviews पे, उससे आपको help मिली होगी, right? बहुत बहुत इट वाज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर मी। एंड एज यू सेड, कम्युनिकेशन पार्ट इज मस्ट फॉर टीसीएस इंटरव्यू। और सर वो थोड़ा सा इंग्लिश के लिए लीनियंट है, और कम्युनिकेशन में इंग्लिश मस्ट है सर। विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट क्रैक द इंटरव्यू पार्ट। इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, इट्स ऑलमोस्ट डन सर। परफेक्ट. तो बेसिकली एमबीए हायरिंग से जो रोल्स मिलते हैं, दे आर क्लाइंट फेसिंग रोल्स. सो कैसे भी रोल होता है उसमें, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ एन इंजीनियर हायरिंग एंड एमबीए हायरिंग. तो एमबीए हायरिंग में जो रोल्स मिलते हैं वो ज़्यादा क्लाइंट फेसिंग होते हैं. सो बेसिकली क्लाइंट फेस करने के लिए यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन, एंड दैट इज वन थिंग जो कि मिनिमम एक्सपेक्टेशन है अपार्ट फ्रॉम सम आईटी नॉलेज. सो डेफिनेटली मैंने कुछ वीडियोस पास में भी बनाए हैं, यू कैन चेक दैट, एंड आई विल बी मेकिंग वीडियोस again also very soon on interview preparation. And this time I am also thinking to do a dedicated training program for interview preparation, ठीक है? जिसमें I will be राइट focusing on the communication and GD practice, along with the preparation for your interview questions, and then resume, making strategic resume, which questions to accept. So very soon I am going to start that as well. So stay tuned, and I'm sure आपको बहुत जल्दी इस पे मेरी तरफ से अपडेट नोटिफिकेशन मिलेगा. So with this, let's move on to the BGC part जो प्रशांत बताना चाह रहा है. या या So, sir, basically, this is the background check हम्म verification part. हम्म So, it was actually conducted yesterday and also today, sir. I got a mail today for rejection part. जस्ट मैंने सर बर्थ एफिडेविट में 100 रुपीज स्टैम्प पे मैंने करा के इंग्लिश में अपना डेट ऑफ बर्थ डिक्लेरेशन दिया था। हम्म सो दैट पार्ट इज रिजेक्टेड बाय द टीसीएस टीम, ऑनबोर्डिंग टीम। सो ओके. द रिजेक्शन रीजन इज क्लियरली मेंशन, प्लीज अपलोड द 10th मार्कशीट। तो अगर 10th मार्कशीट पे हमारा डेट ऑफ बर्थ है तो हमें वो अपलोड करना है बेसिकली। तो मैंने आपको सर बर्थ बर्थ एफिडेविट एफिडेविट नहीं अपने देना है? नोटराइज कराया था। राइट, ओके, गॉट नहीं, इट. हाँ ठीक है. राइट। So this is a सो point to be noted. Upload your 10th mark sheet for birth affidavit if your 10th mark sheet has date of birth mentioned. तो अगर नहीं है तो फिर एग्जैक्टली एफिडेविट लगेगा, राइट? राइट सर, राइट। परफेक्ट. एंड आफ्टरवर्ड दिस ऑप्शन इज इनेबल्ड, क्योंकि सर आपने जैसा हाँ बताया था कि आप बीजीसी जितनी जल्दी कंप्लीट करते हो आपके लिए वो पार्ट बेटर है। आफ्टर अपलोडिंग सम स्टूडेंट्स इन पैनिक, सर मैंने तो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, हाँ व्हाट व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस।
TCS will reject my application or something else, but ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जब रिजेक्शन होता है तो आपको अपलोड करने का फिर से एक ऑप्शन मिलता है। मैं यहाँ यू पे जस्ट एक सिंपली। बात ये बताना चाहूंगा कि मतलब बैकग्राउंड चेक नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। इट इज नॉट इजी टू डू अ नेगेटिव, टू मार्क समबडी बैकग्राउंड चेक नेगेटिव। प्लीज अंडरस्टैंड, आप लोग ये बात को अच्छे से समझ लें, किसी भी कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक नेगेटिव करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट इजी। कैंडिडेट्स को पूरा चांस दिया जाता है टू प्रूव हिज जस्टिफिकेशन। तो जो भी बच्चे मतलब कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है या कोई मिस्टेक हो गया एप्लीकेशन फॉर्म में, प्लीज डोंट बी अफ्रेड, बिल्कुल ना डरें। टीसीएस गिव्स यू अ चांस फॉर जस्टिफिकेशन एंड देन दे विल करेक्ट इट। उनके पास जो ऑप्शंस आपके पास अभी इनेबल नहीं है, उनके पास बैकएंड से इनेबल होते हैं। कुछ ऑप्शंस ज्वाइनिंग जब आती है तो इनेबल कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरे ना, ठीक है। आपको प्रॉपर चांस मिलेगा। लाइक प्रशांत का आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट में इशू था तो वो रिजेक्ट कर दिया एंड यू कैन अपलोड इट अगेन। सो नथिंग टू फियर हियर, यस ठीक सर। है, एट ऑल। So the या the second part is my second document is actually rejected. It's a Aadhaar card. I just हाँ। uploaded my Aadhaar card, simply Aadhaar card. और इट्स वहाँ पे सर मेरा फोटो भी जो है पुराना लगा था। सो मैं सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने आधार कार्ड का फोटो अपडेट करा लें, वो बेटर है। और यहाँ पे ई आधार कार्ड सर हमें अपलोड करना है, दैट इज ई साइंड। हाँ, While passport डिजिटली making, साइन। there is a e-sign Aadhaar is acceptable on the passport center. So करेक्ट। वही सर यहाँ पे अपलोड करना है, और अनमास्क आधार अपलोड करना है जहाँ पे आपके आधार नंबर क्लियरली मेंशन्ड हो, आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड हो, और ई सो साइंड आप होने चाहिए सर। आप आधार की वेबसाइट से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ई आधार कार्ड। और उसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होगी, तो उसको प्रिंट कर लीजिए आप, सो दैट उसमें पासवर्ड रिमूव हो जाए। एंड देन सो दैट कोई दूसरा पर्सन उसको डाउनलोड करके बिना पासवर्ड के देख सके। एंड यू हैव टू अनमास्क इट, सो अनमास्क करा हुआ आधार आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स एन अपडेट, पहले ऐसा नहीं था। अब कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें टीसीएस ने अपडेट करी है। ओके, गुड। ये सर, और ई साइन, एक एक ई साइन हाँ, का उसमें उन्होंने बताया फीचर था होता कि। है, उसमें फीचर होता है हम्म आधार में, ई आधार में कि हम्म। उसको बोलते हैं वर्चुअली साइन, ई साइन करके। तो एडोब पीडीएफ रीडर में आप उसको मतलब वर्चुअली साइन कर सकते हैं। सो दैट इज यस सर। हाउ यू हैव टू डू इट, यस। ओके। So these all are the documents that is document approved। हम्म। पैन कार्ड, पासपोर्ट का मैंने सर एप्लीकेशन अपलोड किया था एट दैट टाइम, तो ये भी हम्म। अप्रूव्ड हो गया है सर। तो जो पार्ट अप्रूव्ड है वो यहाँ पे अप्रूव्ड दिखाई देगा। एंड द वन लास्ट थिंग आई हैव टू शेयर सर, मेरा जो एमबीए का फाइनल सेम का जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट था वो मुझे मिला नहीं था एट दैट टाइम। हाँ तो हाँ। मैंने थर्ड सेम तक के मार्कशीट अपलोड करके सबमिट कर दिया था। सो आई हैव अ ऑप्शन टू अपलोड फोर्थ सेम मार्कशीट। तो नाउ, यहाँ पे सर मैं क्लिक करके वो अपलोड कर सकता हूँ नाउ। तो ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में मौका नहीं मिलेगा या ऐसा, क्योंकि नहीं नहीं, स्टूडेंट्स ऐसे पैनिक कर रहे हैं बहुत सारे। हाँ नहीं, एब्सोल्युटली दैट्स कंप्लीटली नॉनसेंस। सो डेफिनेटली कंपनी विल गिव यू द चांस लेटर ऑन। और बैकग्राउंड चेक बहुत मुश्किल से नेगेटिव होता है, सो डोंट बी अफ्रेड एट ऑल। सो थैंक्स प्रशांत फॉर शेयरिंग दिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों जो आप लोगों को ध्यान देना है। एंड प्रशांत, वंस यू जॉइन ऑल्सो, आई थिंक मे बी वी कैन डू अनदर कॉल कि आपकी ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहाँ पे किन श्योर। चीज़ों का ध्यान देना है। बिकॉज आई थिंक अभी जो टीसीएस ने भी नई चीज़ें अपडेट करी हैं, यू नो, सो बच्चों को वो भी पता चल जाएगा फ्रॉम यू। Sir, ओके। one thing I have to share, sir, last but not the least, there is a onboarding formalities. That is a onboarding form, which is filled by the candidate and submit candidate details, EPFO account and universal account number. तो अभी उन्होंने रिसेंटली ये चीजें अपडेट करी है, तो ऑनबोर्डिंग से पहले हमें जो है वो सारे डॉक्यूमेंट साइन करके अपलोड करने होते हैं, और आफ्टरवर्ड जो है वो वेरीफाई होती है सर। उसके 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, एक्सप्लोर पोर्टल, आईएनओ के पोर्टल पे वो अपलोड करना रहता है सर। तो ये एक नई चीज मुझे देखने मिली, जो इन्फॉर्मेशन सर मैंने आपसे पूछा भी था सर लिंक्डइन पे। हाँ तो राइट। वो सारी चीजें हैं। सो तो वो सारी फॉर्मेलिटीज पास हो चुके हैं सर मेरे। तो बेसिकली यही रहता है आफ्टर ज्वाइनिंग लेटर प्रिपरेशंस। सो बेसिकली ये सब चीज़ें नए डेवलपमेंट्स है टीसीएस में ऑनबोर्डिंग को लेके। सो बेसिकली वंस यू गेट योर ज्वाइनिंग, आपको एक डिटेल मेल आता है और उसमें आपको कुछ ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि फिल करके अपलोड करना होते हैं, राइट। और अब तो राइट सर। यूएन नंबर भी आपको क्रिएट करना है, लाइक प्रशांत आपने बताया, ठीक है। यस और सर। उसके लिए वो एक कॉल भी करते हैं और प्रोसेस को समझाते भी हैं। सो इफ़ यू हैव समथिंग, यू कैन, मतलब वहाँ पे भी समझ में आ जाता है।
इनमें से कोई भी चीज़ें रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी इजी। सो डोंट बी इनटू पैनिक कि क्या कैसे करना है। वंस योर टाइम विल कम, यू विल ऑटोमेटिकली गेट ऑल द डिटेल कम्युनिकेशन। राइट प्रशांत? राइट सर। और सर एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि पेशेंसफुली चीजों को करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम हरी भरी में कुछ भी करते हैं सर तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें। मेरे साथ सर हुआ था वाइल मेकिंग एनएसआर ई कार्ड, जहाँ पे आपको फ्यूचर एम्प्लॉय डालना होता है, मैंने करंट एम्प्लॉय डाल के एक्नॉलेजमेंट क्रिएट कर लिया था। आफ्टर मुझे समझ नहीं आ रहा था, आई वॉज इन पैनिक कि अब क्या होगा। तो एट दैट टाइम मैंने फिर नए मेल से मैंने बनाया सर। तो उस पे एक प्रॉम्प्ट आता है कि इफ यू आर मूविंग विद दिस रेफरेंस नंबर योर प्रीवियस डेटा विल बी डिलीटेड। मैंने जो पहले बनाया था मैंने, तो सर वो करके फिर मेरा वो चेंज हो गया था, और बट नाउ फाइनली एनएसआर ई कार्ड भी बन चुका है। आपको 2 बार पे करना पड़ा होगा, सो दैट्स। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द एनएसआर देर इज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट। हाँ अब तो मैंने सर करंट एम्प्लॉय डाल दिया तो एक्सपीरियंस खोजेंगे वो। हाँ तो राइट। एक्सपीरियंस तो मेरे पास थी नहीं, मुझे नो करना था। तो ऑन ऑन दैट पार्ट मैं वहां से फिर बैक आ गया, लॉग आउट कर लिया। और फिर मैं सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। तो फिर उस टाइम पे मैंने सर एक नए मेल से जा करके जनरेट करना ज्यादा बेहतर समझा सर, फिर वो हो गया। राइट। आई थिंक इज नथिंग टू बी पैनिक अबाउट ऑनेस्टली। मतलब अभी तो हम देख रहे हैं बच्चे काफी इस जनरेशन के बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। सो नथिंग टू बी पैनिक अबाउट। ठीक है, कंपनी हैज ऑफर्ड यू, दे विल डेफिनेटली ऑन बोर्ड यू। उनको कोई मजा थोड़ी आ रहा है कि जस्ट ऑन ऑफर करे और ऑन बोर्ड ना करे। और ऑन बोर्ड करेंगे तो डेफिनेटली सर। पूरे चांस आपको देंगे मिस्टेक सुधारने के, सब कुछ करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सो डोंट बी इन पैनिक फॉर एनीथिंग, ठीक है? All right. So, यस thank सर। you so much, Prashant. Any final tips that you want to give, matlab, to the students or people who are waiting for joining? Anything that is on top of your mind जो आपके दिमाग में है? सर मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप वेट कर सकते हो तो मार्च तक अभी वेट कर लो, क्योंकि सर मार्च में भी अच्छी खासी ज्वाइनिंग्स बनेंगी। और एज पर माय नॉलेज और मेरे को जहां तक लगता है सर, इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फाइनेंस के जो स्टूडेंट है, एक्चुअली आई एम फ्रॉम मार्केटिंग, सो तो मुझे सर पहले मिल गया होगा ऐसा हो सकता है। बट फाइनेंस के भी कुछ स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग मिली है, तो मे बी इन न्यू फाइनेंशियल ईयर न्यू प्रोजेक्ट्स विल कम एंड टीसीएल विल डेफिनेटली मेक अ ज्वाइनिंग लेटर्स to all the सर्टेनली, MBA नो नो, students. सर्टेनली प्रशांत, ज्वाइनिंग तो हर क्वार्टर में ही हो रही है। इट इज नॉट कि आपकी अभी आई है। मैं तो बच्चों को जानता हूँ जिनकी जुलाई से आई है। ठीक है, जुलाई में भी मैंने देखा ज्वाइनिंग। Right. अक्टूबर वाले उसमें भी देखा क्वार्टर में। जनवरी वाला क्वार्टर ये चल रहा है। ठीक है, आपकी अभी आ गई है। तो ऐसा नहीं है, ज्वाइनिंग तो जुलाई ऑनवर्ड्स ही आ रही है। बट मैंने जो लास्ट वीडियो में समझाया था, उनका प्रॉपर हायरिंग मैट्रिक्स होता है। उसमें एनक्यूटी के बच्चे भी होते हैं, एमबीए के भी होते हैं, स्मार्ट और इग्नाइट के भी होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट हर कैडर से वो बच्चों को लेते हैं, जैसे कि इस बार आप शेयर कर रहे हो, कर रहे हैं। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ऑनबोर्डिंग एंड Yes, हायरिंग sir. आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, सो डोंट थिंक कि मतलब अभी अभी आएगा, कब आएगा, हमेशा आता ही रहता है। दैट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। ओके। It's So okay, thank sir. you so much, Prashant, for coming in Thank you, sir. again and sharing all these things. मुझे बहुत खुशी है, and I must appreciate you. मुझे नहीं पता था कि आप बच्चों को गाइड करने के लिए एक पीपीटी बना के लाएंगे। इट शोज योर सिंसियरिटी। एंड आपने एग्री किया, मतलब इस कॉल पे आके शेयर करने के लिए। दैट शोज कि यू रियली वांट टू हेल्प अदर्स। एंड आई थिंक प्रशांत, आपके जैसे ही माइंडसेट के बच्चे मतलब रियली एक्चुअली हेल्प अदर्स एंड आर गुड इंस्पिरेशन फॉर अदर्स एज वेल। आप में से भी जो बच्चे जो है देख रहे हैं इस वीडियो को, टुमारो इफ यू गेट योर ज्वाइनिंग और इफ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट एनीथिंग, let me know in the comment section. I will also mention my email id in the description section. आप मुझे मेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। and then like प्रशांत also, I can host you, okay, Yes, and sir. others can get benefited. ठीक है? ओके। सो प्रशांत, बेस्ट विशेस आपकी ज्वाइनिंग के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आप टीसीएस ज्वाइन करके बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लें। एंड someday we are Thank you, going to sir. be doing the call again to understand how was your joining experience और आप कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, and what are your learnings. Best wishes, प्रशांत, and thank Sure. you so much again. Thank you, sir. Thank you, sir.